Assalamu alaikum. Okay, ladies, we are going to now go on to our final presentations for this module. कि जो आप लोगों ने main presentations तैयार करनी है, which will be worth 20 marks, उसका काम ये है कि ये book है Put Reading First, जिसमें kindergarten से grade 3 तक की जो reading skills और reading strategies, activities important होती हैं, वो सारी इसमें mentioned हैं. तो इसमें बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप इसको देखें तो इसमें 5 टॉपिक्स हैं which are phonemic awareness, phonics instruction, fluency instruction, vocabulary instruction and text comprehension instructions. आप लोगों ने पूरी क्लास के 5 ग्रुप्स बनाने हैं इक्वल. अब ये CRs का काम है कि इन ग्रुप्स के जो है वो नेम्स मुझे देंगे और फिर इसमें जो कंटेंट इस बुक में दिया गया है you will present and explain that और इसकी actual presentations आपकी होंगी. So you will have to develop good slides from the materials given in the books, and as you explain them to the class, we will also discuss this and you will teach it to the rest of the students. ठीक है? Phonemic awareness instruction जैसे आप खुद देखेंगे कि कहाँ से आपके टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं और आपने इतना बड़ा आपका ग्रुप होगा कि easily you can manage by dividing the content between yourselves, or while making the presentation, any question you have, you can convey it to me और हम उसकी discussion कर सकते हैं. So don't be bothered कि हमें समझ नहीं आएगा, इसकी आराम से आपको समझ आ जाएगी. Phonemic awareness instruction में क्या है? Phonemic awareness क्या होती है? This is the ability to notice, think about, and work with the individual sounds in the spoken words. Before children learn to read print, they need to become aware of how the sounds in words work. They must understand that words are made up of speech sounds or phonemes. The phonemes are basically the smallest unit of sound, और फिर किस तरह से उनको जोड़ना है, उनको तोड़ना है, वो हम बच्चों को सिखाते हैं. Children can show us that they have phonemic awareness in several ways, including recognizing which words in a set of words begin with the same sound. तो ये bell, bike, boy में same sound क्या है beginning? B. Then isolating and saying the first and last sounds. For instance, dog में D first sound है, G is the last sound. या फिर इसमें जिस तरह कहा है breaking or segmenting a word into separate sounds. So up में 2 sounds कौन सी हैं? A और P. अब ये different skills हैं कि जिस तरह से हम sound जिसको उन्होंने बड़े आराम से जो है आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए समझा के कहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि these are the different activities and the skills about phonemic awareness which can be taught and learned. तो phoneme isolation, phoneme identity के same sound है. Isolation का मतलब एक phoneme को अलग अलग कर देना. phoneme categorization के एक ही कैटेगरी के जो है वो phonemes उनको अलग अलग कर देना, ठीक है, और एक ही तरह की साउंड्स को रिकॉग्नाइज करके कहना कि ये सिमिलर हैं और ये डिसिमिलर है, इस तरह से कैटेगरीज बना लेना. ब्लेंड करके साउंड्स को बोलना, फिर सेगमेंटेशन अलग अलग करके उनको बोलना. कोई एक फोनीम डिलीट कर दें, जैसे स्माइल में से एस निकाल दें तो माइल बन जाएगा, ये फोनीम डिलीशन हो गई. फोनीम एडिशन कर देना, जैसे पार्क के शुरू में एस लगा दें, साउंड लगा दें, स्पार्क बन गया. देन फोनीम सब्स्टिट्यूशन, जैसे आप बग के एंड पे ग हटा के न लगा दें तो बग की बजाय बन बन गया, ठीक है. दीज आर डिफरेंट स्किल्स. तो इस पूरे हैंड आउट में क्या है और किस तरह से चीजें एक्सप्लेन की गई हैं. आप लोग अपने ग्रुप्स बनाएं, ग्रुप्स में काम करें, मिलके इसको पढ़ें. उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछें, अपनी प्रेजेंटेशंस तैयार करें. ये वाली प्रेजेंटेशंस हम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में जो है वो रखेंगे, ठीक है. तब तक मैं आपको बाकी चीजें कुछ और भी करवाऊंगी, लेकिन ये प्रेजेंटेशंस आपके पास बहुत टाइम है इसको पढ़ने और तैयार करने में. फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आप लोगों ने ये मुझे प्रेजेंट करना है. This is the entire first topic जो phonemic awareness instruction से related है. Then आपका अगला जो है topic which will be regarding phonics instruction, वो ये है कि जिसमें क्या relationship है grapheme और phoneme में. Grapheme is the written symbol और phoneme is the sound. तो graphophonemic relationship क्या है जिसके थ्रू आप phonics सिखाते हैं कि ये वाला जो letter है ये लिखा इस तरह, इस सिंबल का जो मतलब है
वो है कि इससे हमने प साउंड बनानी है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में ये जो मैं आपको बता रही थी कि जो पी का सिंबल है वो उसकी जो है साउंड कैसे आपने निकालनी है, तो ये रिलेशनशिप डेवलप करना कि कौन सा सिंबल किस साउंड के हिसाब से जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फोनिक्स इंस्ट्रक्शन। और फिर आप किन किन एक्टिविटीज के थ्रू और किस तरह से फोनिक इंस्ट्रक्शन जो है सिस्टमैटिक एक्सप्लिसिट फोनिक इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप करवा सकती हैं, फिर अप्रोचेस कैसी हैं इसके अंदर, सिंथेटिक फोनिक्स, एनालिटिक फोनिक्स, एनालॉजी बेस्ड फोनिक्स, ये सब आप करा सकती हैं, इसकी हम डिस्कशन करेंगे। फिर इन्होंने डिफरेंट जो है उसकी स्टेटमेंट्स दी हैं, उनकी एक्सप्लेनेशंस दी हैं, ये आप अपनी उसमें सारी प्रेजेंटेशन में जो है मुझे डिस्क्राइब करेंगी। तो और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं फोनिक इंस्ट्रक्शन के वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं कि हाउ कैन आई टेल इफ अ फोनिक्स प्रोग्राम इज सिस्टमैटिक और एक्सप्लिसिट, व्हाट डू नॉन सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स ऑफ फोनिक इंस्ट्रक्शन लुक लाइक। तो ये आप लोग पढ़ें, इसको जब आप पढ़ के मेरे साथ डिस्कस भी करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद जब हम आप प्रेजेंटेशंस भी दे रहे होंगे तो हम इसकी क्लास डिस्कशन करेंगे एट लेंथ। थर्ड ग्रुप के पास होगा फ्लुएंसी इंस्ट्रक्शन। फिर कौन होते हैं मोर फ्लुएंट रीडर्स, लेस फ्लुएंट रीडर्स, आपने इसी सारे मटेरियल को उसमें मुझे प्रेजेंट करना है, इसलिए आप इस पे तो परेशान ना हो कि आपने मटेरियल कहाँ से लेना है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब ऑल दिस। फिर रिपीटेड एंड ओरल मॉनिटर्ड ओरल रीडिंग जो है उसके थ्रू फ्लुएंसी कैसे इंक्रीज की जाती है, ओवरऑल रीडिंग अचीवमेंट कैसे डेवलप की जाती है। और फिर डिफरेंस बिटवीन फ्लुएंसी एंड ऑटोमेटिसिटी, ये क्या होती है कि ऑटोमेटिकली कुछ रीड कर लेना, जैसे कहीं पे आप लोगों का नाम लिखा हो अगर तो आप उसको फिर ये तो नहीं ना करते कि जैसे फॉर इंस्टेंस मेरा नाम सारा है तो मैं पूरा पढ़ूं कि SARA सारा, नहीं, आई इंस्टेंटली एंड ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज दैट वर्ड, और इसमें मुझे ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ दैट वर्ड ऑफ दैट सिंबल जो है वो मुझ में आ गया हुआ है, जिसको हम ऑटोमेटिसिटी कहते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्लुएंसी इंस्ट्रक्शन भी इसमें दिए गए हैं, आप लोगों ने ये सारा मटेरियल अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करना है। आपके 10 से 12 पार्टिसिपेंट्स आई थिंक होंगे, इसलिए यू डोंट नीड टू वरी कि आपके पास बहुत ज्यादा मटेरियल होगा। व्हाट यू जस्ट नीड टू डू, और अब से लेके फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक बहुत टाइम है, व्हाट यू नीड टू डू इज you have to develop the groups and then you have to divide the material, you have to read it, you have to discuss it together, WhatsApp group में आप अपना एक बना के कर लें, and then you have to develop that presentation, और मेरे से discussion भी आप कर सकते हैं अपने topic से related, और फिर you have to present it. Then vocabulary instruction में types of vocabulary आ गई, listening vocabulary, speaking vocabulary, reading vocabulary, writing vocabulary. फिर scientifically based research क्या कहती है vocabulary डेवलपमेंट के बारे में, इनडायरेक्ट वोकैबुलरी लर्निंग क्या है, डायरेक्ट वोकैबुलरी लर्निंग क्या है। फिर स्पेसिफिक वर्ड इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप वोकैबुलरी सिखाएं या स्पेसिफिक वर्ड्स पहले सिखाएं, एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन कैसे करवाएं, और क्लासरूम इंस्ट्रक्शन की इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। फिर वर्ड लर्निंग स्ट्रैटेजीज कौन सी इस्तेमाल होती हैं, और इसके अलावा जो है यूजिंग वर्ड पार्ट्स, वर्ड के पार्ट्स को इस्तेमाल करके, जैसे प्रीफिक्सेस सफिक्सेस होते हैं, उनके थ्रू कैसे वोकैबुलरी सिखाई जाती है, इंक्रीज की जाती है, ये सारी चीजें जो हैं इसमें दी गई हैं। फिर यूजिंग कॉन्टेक्स्ट क्लूज के, अपने कॉन्टेक्स्ट और इर्द गिर्द के माहौल और बैकग्राउंड से आप कैसे क्लूज लेके वोकैबुलरी को रिकॉग्नाइज भी करते हैं, इंक्रीज भी। नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस यू मे हैव अबाउट वोकैबुलरी इंस्ट्रक्शन वो हैं, तो स्टूडेंट्स को किस तरह से वर्ड इनडायरेक्टली सिखाने में आप मदद कर सकते हैं, किस तरह से वर्ड उनको टीच किए जाते हैं, ऑल ऑफ दिस इज कवर्ड in vocabulary instruction. और are there different types of vocabulary learning, तो type of vocabulary word learning जो है वो उन्होंने यहाँ पे explain की हुई है कि meaning के साथ meaning, known word, unknown word को किस तरह से आप सीख सकते हैं, किस तरह से आप अपनी clarity of vocabulary increase कर सकते हैं, वो सारा कुछ इसमें दिया। The last topic is text comprehension instruction, कि जब आप में phonemic awareness आ गई, phonic instruction आ गई, fluency आ गई, और जो है वोकैबुलरी भी आ गई, तो उसके बाद ओवरऑल जो पूरा टेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो आप लोग किस तरह से उस पूरे टेक्स्ट की समझ रखेंगे, हाउ डू यू एक्टिवली एंगेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट विद अ पर्पस, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। टेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन कैन बी इम्प्रूव बाय इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प्स रीडर्स यूज स्पेसिफिक कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रैटेजीज, वो स्ट्रैटेजीज क्या हैं, मॉनिटरिंग कॉम्प्रीहेंशन हो सकती है, सारा आप लोग ये पढ़ेंगे। यूजिंग ग्राफिक and semantic organizers हैं, answering questions,
फिर जनरेटिंग क्वेश्चंस, समझने के लिए आप क्वेश्चन टेक्स्ट के बारे में सवाल पूछें और उसके जवाब आपको मिले। फिर रिकग्नाइजिंग स्टोरी स्ट्रक्चर, ये भी आपको टेक्स्ट की कॉम्प्रिहेंशन इंक्रीज करता है। समराइजिंग के थ्रू आपकी टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन डिपिक्ट होती है। और डिफरेंट कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रैटेजीज की आगे उन्होंने बात की हुई है। इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज जो हैं एक्सप्लिसिट और डायरेक्ट भी हो सकती हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। ये देखें, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, मॉडलिंग, गाइडिंग, प्रैक्टिस, एप्लीकेशन। फिर कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू आप टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन ग्रुप वर्क में किस तरह से सिखा सकते हैं। अगेन इसमें भी उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मेकिंग यूज ऑफ प्रायर नॉलेज, और कौन सी आपने टेक्स्ट जो स्ट्रैटेजीज हैं वो सिखानी है। तो ऑल ऑफ दिस इज गिवन इन दिस बुक। और आप लोगों ने, जैसे कि मैंने कहा, 5 ग्रुप्स बनाने हैं ऑफ योर एंटायर क्लास, और आप लोगों ने फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में मुझे ये वाली प्रेजेंटेशंस जो हैं, यू विल प्रेजेंट देम, एंड एज यू प्रेजेंट देम विल डिस्कस देम, ताकि अपने टॉपिक के अलावा बाकी के जो 4 टॉपिक हैं वो भी आप लोगों को समझ आ जाए, उसमें हम काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे। ओके, सो आई होप दिस टास्क इज क्लियर टू यू, बट आप इसको पढ़ें, अपने ग्रुप्स बनाएं, उसके बाद एनी क्वेश्चंस यू हैव अबाउट योर टॉपिक वो आप मुझे बता दें। और CRs आप लोग इनके 5 ग्रुप्स बना के उसके बाद मुझे आप दें, तो मैं इनको टॉपिक्स असाइन करूंगी ताकि किसी किस्म की कोई बहस ना हो। तो उसके बाद फिर ये प्रोसीड करेंगे। ओके, चलें, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।